Good evening, friends. Good evening. As she introduced, I am Vilas Bonde from Bank of Baroda, now retired. I took voluntary retirement some 8 years back, just to spare more time for some social and spiritual activities. Today the topic is something different. Where is the peace? Shanti. I will start with one question in Gujarati first. ગુજરાતમાં આપણે જ્યારે મળીએ ત્યારે એકબીજાને પૂછે છે કેમ છો, નોર્મલી મજામાં. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કેવું છે, શાંતિ છે. પણ ખરેખર શાંતિ છે? This is my question. We tell everybody that yes, there is peace in my life, but it is not there. If we are honest to ourselves, we can say firmly that yes, peace is not there in my life. Then why it is not there? What are the reasons? In the morning, when we read newspapers on daily basis, we read so many negative news, and at times we feel that where this society is going, how come all such negative things are happening in this society? Corruption, crime, nowadays including rape, then robbery, then suicide, murders and what not. ये सब कुछ जब होता है सोसाइटी में तब ऐसा लगता है कि ये सोसाइटी सचमुच में कहाँ जा रही है. एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, दैट इज द मेन क्वेश्चन. Whenever there is no internal peace, we normally go towards restless society. हर एक आदमी सोसाइटी को बनाता है, लेकिन आदमी के दिल में या दिमाग में पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो उसका रिफ्लेक्शन सोसाइटी में दिखता है. तो सोसाइटी यदि इस प्रकार का रिफ्लेक्शन दे रही है तो इसका मतलब कि देयर इज नो पीस इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. सभी जगह पे टेंशन है, स्ट्रेस है, क्राइम है, जैसा कि मैंने बताया. तो ये क्यों है, थोड़ा उसके बारे में हम सोचेंगे. एंड देयर आफ्टर अबाउट समथिंग अबाउट रेमेडी, इसमें से कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में भी बात करेंगे. मुझे लगता है कि फर्स्ट रीजन जो कुछ भी है दैट इज मनी, एंड पर्टिकुलरली द स्टाइल ऑफ लाइफ नाउअडेज. हम बार बार ये सोचते हैं कि मनी कैन बाय एवरीथिंग इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड, एंड फॉर दैट आई हैव टू हैव मनी, I have to earn money, in whatever way it is possible, in whatever means it is possible. So if you think in that line, then as we all know that there are some things which cannot be
purchased or bought by money. For example, house and home. There is a difference between house and home. House is just 4 walls and a roof. But home means a family. That too good family. Similarly, hospital and health. With money, you can be hospitalized in some great multi-speciality hospitals. But to get health may not be possible only by way of money. You can spend money, that's true. But it is not possible all the time that you will get the help. मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जाने के बाद वापस नहीं आते. पैसा बहुत है उनके पास लेकिन फिर भी नहीं आते वो वापस. उसी प्रकार से हम सोचेंगे तो बेड एंड स्लीप. यू कैन गेट अ गुड बेड, स्लीप वेल वगैरह, बड़े बड़े मैट्रेसेस, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसके ऊपर आपको नींद आएगी कि नहीं ये नहीं मालूम. अच्छा बेड होना जरूरी नहीं है, जरूरी है नींद आनी चाहिए. तो वो नींद क्यों नहीं आती, इसका मतलब ये है वही फाइनली फैसिलिटीज एंड हैप्पीनेस. देयर इज डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटीज एंड हैप्पीनेस. यू कैन परचेज ऑल द फैसिलिटीज बाय वे ऑफ मनी श्योरली, बट द हैप्पीनेस इज समथिंग डिफरेंट. Happiness relates to Shanti, peace. If that happiness is not there in your life, then money will be useless to you. In this context, I remember 1 or 2 stories. You might have heard those stories earlier, but still I will repeat. Alexander the Great, when he was going back, as you know, he could not conquer India. All the people, army, everybody was tired. They were sick, ill. They wanted to go back as early as possible to their own country. रास्ते में शायद आपने पढ़ा भी होगा कि किसी वनवासी क्षेत्र में जाते समय अलेक्जेंडर को एक बाण लगा और वो दैट वाज पॉइजनस. तो उसकी तबीयत उसकी वजह से बहुत खराब हो गई. धीरे धीरे वो टूटता गया एंड ही वाज ऑन बेड. व्हेन ही वाज बेड रिडन एंड ही कुड सी दैट ही विल नॉट नाउ लास्ट एनी मोर. सो एट दैट टाइम ही आस्क्ड ऑल हिज डॉक्टर्स, जिसको हम हकीम कहेंगे उस समय, वैद्य जो कुछ भी होंगे या तो जो कोई भी है, एंड चीफ ऑफ द आर्मी, बाकी उनके फ्रेंड्स वगैरह, प्रीस्ट उस समय उनके पास जो होंगे वो. ही कॉल्ड ऑल ऑफ देम एंड टोल्ड देम दैट आई एम नाउ गोइंग, दैट फॉर श्योर आई हैव माय 3 लास्ट विशेस. आप वो 3 जो मेरी इच्छा जो है वो पूरी करेंगे. तो सबने, वो तो सम्राट थे, तो सबने कहा कि हाँ महाराज आप जो कहेंगे वही हम करेंगे. तो क्या आपकी इच्छा क्या है, बोलिए. तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 इच्छाएं हैं. पहली इच्छा कि जब मुझे अर्थी मेरी जो ले जाएंगे, उस समय शायद कॉफिन नहीं होगी हम कहेंगे, लेकिन जैसे हम यहाँ हिंदू ले जाते हैं उसी प्रकार से बांध करके ले जाते होंगे, तो अर्थी ले जाएंगे. तो वो अर्थी जो है वो मेरे जो 4 डॉक्टर्स हैं उन्होंने ही उठानी है. दूसरी बात, जब वो फ्यूनरल जाएगा, अर्थी जाएगी जिस रास्ते से, तो उस रास्ते पे हमने जो कुछ भी लूट करके संपत्ति इकट्ठा की है, वेल्थ जो ली है, सोना है, चांदी है, डायमंड्स है, पर्ल्स है, जो कुछ भी है, तो वो सारी चीजें वो फ्यूनरल के रास्ते पे बिछानी है और उसके ऊपर से फ्यूनरल जाना चाहिए. और तीसरी बात कि अर्थी पे जब मुझे बांधेंगे आप, तब मेरे दोनों हाथ वो खुले रखने हैं और बाहर रखने हैं, बाहर की ओर. ऑल द पीपल दे एग्री.
but they wanted to ask the Samrat, why, what is the reason? Why he wanted to have such wishes? Then Sikandar told, okay, there are reasons behind those wishes. First is, all these experts are there, doctors are there. I am the king of world, so to say. विश्व विजेता जिसको कहते थे पहले, सचमुच में उसने तो विश्व नहीं जीता है, लेकिन फिर भी तो इतना बड़ा मैं सम्राट हूं, फिर भी ये डॉक्टर्स जो है, या तो हकीम जो है, या तो वैद्य जो है, वो मुझे नहीं बचा पाए, इसलिए उन्हीं को मेरी अर्थी ले जानी है। दूसरी विश, whatever I have earned, I have looted, इतना सारा मैंने इकट्ठा किया है, वेल्थ जो है वो सारी वेल्थ जो है वो यहीं छोड़ के मैं जा रहा हूं, उसका भी कोई मुझे उपयोग नहीं है, इसलिए वो भी मेरे रास्ते में आप बिछाते जाओ, उसके ऊपर से हम जाएंगे। ये वेल्थ का मुझे कोई उपयोग नहीं हो रहा है, ये लोगों को जानना चाहिए, लोगों ने। एंड थर्ड इज, आदमी जब आता है या तो जाता है, वो खुले हाथ जाता है, कुछ साथ में नहीं ले जाता, इसलिए मेरे हाथ खुले रखने हैं और वो भी बाहर रखने हैं। मैं कुछ साथ ले नहीं जा रहा हूं, ये पूरे विश्व को मालूम होना चाहिए। ये हुई एक सिकंदर की बात। उसी प्रकार से एक जैन साहित्य में देयर इज वन स्टोरी ऑफ श्रेष्ठी सुमेध। सुमेध, हिज फादर एक्सपायर्ड, he was millionaire in that town. एक्सपायर होने के बाद, after completion of all rituals etc., his manager or the Muni, we can call, he told one day that Sumed Shreshti, now you are the owner of this wealth. He showed all the wealth, showed all the books of accounts etc., and told that you are the owner now, और आप इसको संभाले और जिस प्रकार से इसका कार्यभाग करना है वो करेंगे। Sumed asked him, this much wealth was there, and still my father died. My grandfather was also multi-millionaire. Still he also could not stay here. And both of them, they could not take anything with them. Then what is the use of this wealth? Why should I involve myself in this wealth keeping procedure? उसके मन में, जैसे गौतम बुद्ध के मन में, उसने जब वो 3-4 दृश्य देखे और संन्यास वैराग्य जिसको कहेंगे वो आया था, उसी प्रकार इसके मन में भी वही आया कि इसका कोई उपयोग नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें मैं क्यों करूं। और इसीलिए उन्होंने he went for chose to take renunciation and became Jain sadhu. Let me clarify one thing. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा सबने सब छोड़ छाड़ करके और सन्यासी बनना है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे मैं मेरे जो कुछ भी मुझे कहना है उसके ऊपर मैं आऊंगा बाद में। तो ये 2 स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि जस्ट हमें मालूम हो कि वेल्थ इज नॉट द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. देयर आर फ्यू अदर थिंग्स ऑल्सो एंड दोज थिंग्स शुड हैव सम इम्पोर्टेंस एंड वी शुड गिव सम importance to those things also. These 2 words you can have a very serious look. One is needs and another is wants. There is a difference. You all know. मेरी आवश्यकता है जीवन जीने के लिए क्या है और मेरी इच्छाएं क्या है, ये 2 चीजों में फर्क है. ठीक है ना. और कहते हैं कि आवश्यकताएं जो है वो हमेशा ऊपर वाला जो है वो पूरी करता है, लेकिन हमारी जो इच्छा होती है ना
वही अनलिमिटेड होती है और वो कभी पूरी होना मुश्किल है। मैंने अनलिमिटेड है इसलिए, उसमें भी 2-4 इच्छाएं हो तो ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारी इच्छाएं इतनी सारी होती है कि वो पूरी होना वो मुश्किल है। किसी आदमी को पूछा जाए कि भाई आपको हैप्पी होने के लिए व्हाट अमाउंट यू नीड, किसी ने पूछा कि ओके, थोड़ा गरीब होगा या तो मिडिल क्लास होगा, तो उसको पूछा कि आपको कितना पैसा देंगे तो आप हैप्पी होंगे, खुश हो जाएंगे। तो उसने कहा फटाक से, अरे मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो आई विल बी हैप्पी। अच्छा ठीक है, आपको दिया 1 करोड़ रुपया, ही गॉट 1 करोड़ रुपीज। अभी का जो इन्फ्लेशन रेट है उसके हिसाब से तो आपको मालूम है, ही परचेज सम बंगलो, फर्नीचर बनाया, कुछ ऑर्नामेंट्स खरीदे, क्लोथ्स खरीदे वगैरह वगैरह, और 1 करोड़ रुपीज खत्म। उसको लगा कि अब क्या करूं मैं, फिर से वो अशांत हो गया, खुशी तो नहीं मिली। तो उसको पूछा गया अब क्या करेंगे, उसने कहा कि नहीं, मुझे अब और 1 करोड़ रुपया दो। सचमुच में इस प्रकार से 1 करोड़ रुपया और देने से भी वो खुश होता क्या? नहीं होता। मैंने सवाल यही है, हर बार हर सवाल के पीछे यही आंसर हमारा रहेगा कि हमारी इच्छाएं जो है वही इतनी सारी अमाप है जो कभी पूरी नहीं होती। आज मैं यहाँ काउंसिलर हूँ, बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं काउंसिलर हूँ। टुमारो माई विश इज टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मिनिस्टर, ठीक है। मैं काउंसिलर के बाद मुझे तुरंत ऐसा लगता है कि मैं विधानसभा में जाऊं, अहमदाबाद जाऊं, गांधीनगर जाऊं। अरे नहीं, अभी तो मैं दिल्ली में जा सकता हूं, दिल्ली में भी मैं मिनिस्टर बन सकता हूं। किसी के पास एक बंगला है, आज की जो टेंडेंसी है वो मैं बता रहा हूं, ही इज हैप्पी। एक्चुअली उसके पास अच्छी तरह से रहने की जगह है, काफी लोगों के पास नहीं है, उसके पास है, दैट वे ही शुड बी हैप्पी। लेकिन देखा तो ही इज नाउ थिंकिंग ऑफ परचेसिंग सम वीकेंड होम और रिसोर्ट टाइप, फार्म हाउस कहते हैं जिसको, वो चाहिए मुझे। अब एक बंगला जो है वो नहीं, अब तो मुझे वीकेंड के लिए जाने के लिए दूसरा एक फार्म हाउस तो होना चाहिए ना अपने पास। मेरे पास 2 व्हीलर है, आई विल बी थिंकिंग ऑफ परचेसिंग सम 4 व्हीलर। मेरे पास 4 व्हीलर मारुति है, तो मैं सोचूंगा अरे नहीं यार, अब कोई स्कोडा लूंगा या तो BMW लूंगा तो जरा ठीक रहेगा, ठीक है ना। बस कंटिन्यूअसली हम यही सोचते रहते हैं, और इतना सारा होने के बाद भी, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत बड़ा आदमी है, मानो पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा रिच है एकदम, बहुत अच्छी हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा है, और कोई बीमार हुआ, उसका बीवी बेटा कोई भी, बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वो बचा नहीं पाता उसको। तब जाकर के उसके मन में इतना दुख होता है कि इतनी सारी चीजें मेरे पास है, फिर भी मैं मेरे बेटे को या तो बीवी को मैं बचा नहीं पा रहा हूं। क्यों? वो तो दुखी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पैसों से सब होता नहीं है। लेकिन ये जब समझते हैं ना लोग, तब तक बहुत देर हो जाती है। पहले लोग समझते नहीं है, जब समझ आती है तब तक बहुत देर होती है। हम हर बार यही कहते हैं, लाओ लाओ, बस जो भी है मुझे चाहिए। और तभी तो हमारे यहाँ से कभी कभी ऐसा होता है ना, सिंगापुर में अभी एक फिल्मी एक्ट्रेस को पकड़ा गया, कोई छोटी सी चीज को वहां के मॉल से चोरी करते हुए। अब उसके पास पैसों की क्या कमी थी, फिर भी उसको चाहिए, कुछ नया चाहिए बस, और कैसे भी चाहिए। मैंने बताया वैसे, बाय एनी मीन्स। और जब ये बाय एनी मीन्स आता है ना, तभी तकलीफ होती है। अच्छे मीन्स से तो हम खूब कमा सकते हैं, लेकिन बाय एनी मीन्स से कमाना है तो उसमें बहुत तकलीफ होती है। एक उसके ऊपर से एक स्टोरी है छोटी सी, कि एक फकीर था, he went to a बादशाह, king, and told him that this is my begging pot, भिक्षा पात्र जिसको हम कहेंगे। And महाराज,
you just try to fill this भिक्षा पात्र by anything. तो महाराज ने सोचा कि भाई महाराज के पास आया है तो मैं इसको तो सोना मोहरे वगैरह ऐसा कुछ दूंगा और उसका भिक्षा पात्र तो भर दूंगा, उसमें क्या इतना सा भिक्षा पात्र है। तो उन्होंने थोड़ा सोना वगैरह डाला उसमें। तो भिक्षा पात्र कुछ ऐसा था कि उसके अंदर जो कुछ भी डालते थे वो अदृश्य हो जाता था। महाराज ने he tried to pour down everything, whatever he was having in his treasure. He gave everything in that Bhiksha Patra, but he could not fill that Bhiksha Patra totally. तब जाकर के बादशाह ने पूछा व्हाट इज द सीक्रेट, ये भिक्षा पत्र में ऐसा क्या है जादू है कि ये कुछ भरता नहीं है। देन फकीर आंसर दैट बादशाह, दिस पॉट इज प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन स्कल, आदमी की खोपड़ी से बनाया हुआ है। और आदमी की खोपड़ी कैसी होती है कि जिसके अंदर जितना भी डालो सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। उसको तो चाहिए ही, जो कुछ भी डालो वो चाहिए। तो यही चीज हमारी हर एक की हो रही है। जब तक ये चीज चलेगी तब तक शांति मिलना ये बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आदि शंकराचार्य जी को किसी ने पूछा कि हु इज द पुअर, गरीब कौन है? तो शंकराचार्य ने जवाब दिया था, यस्य विशाल तृष्णा, कि जिसकी इच्छाएं अपरंपार है, अमाप है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो सचमुच में गरीब है। बिकॉज कितना भी वो रीच होगा लेकिन उसको तो नहीं लगेगा ना कि मैं रीच हूं, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। इसके लिए मैं एक मेरी जिंदगी का ही एक उदाहरण देता हूं आपको। यू माइट बी नोइंग, आई विल टेल नेम ऑल्सो, माइकल परेरा बिलियर्ड्स के चैंपियन थे। सिटी में यू गेट सो मेनी न्यू स्कीम्स। आपको कोई आपका फ्रेंड आकर के बोलेगा ये स्कीम है, उसमें आप मेंबर बनो, बाद में आप 4 मेंबर और बनाओ, या तो ये कोई चीज सिर्फ बेचो और 4 मेंबर बनाओगे तो वो 4 मेंबर का कमीशन आपको भी मिलेगा। बाद में वो 4 मेंबर और बनाएंगे तो वो 16 लोगों का कमीशन आपको मिलेगा। ऐसी स्कीम्स आती रहती है हमेशा। तो ऐसी स्कीम लेकर के एक आदमी मेरे पास आया, मेरा फ्रेंड था। तो मैंने उसको बताया कि भाई ठीक है, ये स्कीम तो आपकी ठीक है, लेकिन कौन कौन इसमें लोग हैं? तो उसने प्राउडली बताया कि यू नो माइकल परेरा, ही इज आल्सो द मेंबर। मैंने कहा माइकल परेरा को ये मेंबरशिप करने की क्या जरूरत पड़ी? तो उसने क्या बताया मुझे मालूम है कि हाँ ये उसके पास पैसा तो है, जरूर है, बहुत है अभी पैसा, लेकिन अभी ना उसको खुद को चार्टर्ड प्लेन खरीदना है, खुद के लिए एक प्लेन अलग से खरीदना है, इसके लिए उसको पैसा चाहिए। ये सही बात मैं बता रहा हूं। अब माइकल परेरा को भी प्लेन खरीदने के लिए उसकी इच्छा अभी भी बाकी है उसकी, इतना सारा करने के बाद, तो तब जाकर के उसको शांति मिलेगी। तो इसलिए यस्य विशाल तृष्णा, जिसकी इच्छाएं अमाप है, वही आदमी सचमुच में गरीब है, वो कभी रीच नहीं हो सकता। And all these rich persons, are they really happy? ऐसा भी कभी कभी सवाल आता है। तो आप देखेंगे कि all these rich persons, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग पॉलिटिशियंस या तो बिजनेसमैन, वो सारे लोग रात को सोते समय घबराते हुए सोते हैं। They will be always thinking of their murder और रॉबरी। मेरे पास जो धन है वो कोई चोरी करके ले जाएगा, ये हमेशा उनको डर लगता है। उनको हमेशा डर लगता है कि कोई मुझे मार डालेगा तो। उनको इसकी वजह से नींद नहीं आती, स्लीपलेस नाइट्स जो हमें आती है उनको नहीं आती, ठीक है ना। बाद में उनको कभी नहीं तो कोई शेयर बाजार में होगा तो ही विल बी ऑलवेज अफ्रेड कि कल द मार्केट कोलैप्स हो गया तो मैं डूब जाऊंगा, मंदी।
इसलिए वो भी डरते होंगे। ये सारा होने के बाद उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती होगी। किसी ने मुझे यही बताया था कि इतना सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद कोई आदमी क्या खाता है? 2 रोटी, 4 रोटी। 4 रोटी खाने के लिए इतनी सारी मेहनत करने की और इतने सारे करप्शन करके पैसा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? मेहनत तो करनी चाहिए आदमी ने, जरूर। उसको तो जीवन में आया है तो उसने सब करना है, लेकिन ये सारे करते समय जो कुछ भी प्लस माइनस पॉइंट्स जिसको होते हैं ना, वो सारे ख्याल में रखते हुए कुछ करना है तो ठीक है। मानो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बाद में परहेजी होगी, उसको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। हमें सबको मालूम है डायबिटीज है तो मुझे ये नहीं खाना है, मुझे बीपी है इसलिए मुझे ये नहीं खाना है। अरे ये सारी नहीं खाने की चीजें होती है और फिर भी हम इकट्ठा तो पैसा ही कर रहे हैं कंटिन्यूसली। बाद में कभी कभी उनको इश्यू नहीं है, सन या डॉटर नहीं है, तो उसके लिए वो कोशिश करते होंगे। वो होता है मानो तो वो अच्छा नहीं होता है, डिजेबल है, मेंटली रिटायर्ड है, गुजराती में आपने कही तो थोड़ा गानपन है, एक स्क्रू ढीला है मानो, तो ऐसे बेटे को या तो बच्ची को लेकर के क्या करोगे? और होता है। और ये सारा होने के बावजूद भी हमारी जो वेल्थ इकट्ठा करने की जो इच्छा है वो कहीं भी रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। एक ऐसी स्मॉल स्टोरी है। नॉर्मली मैं बोलते समय ऐसा ही करता हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज और उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर के किसी बात को रखना है, कोई उपदेश वगैरह नहीं देना है मुझे, क्योंकि मैं ऐसा कोई विद्वान आदमी या तो संत महात्मा नहीं हूं, आपके जैसा ही हूं। सो देयर इज वन स्टोरी ऑफ ए रिच मैन, शेठ गुजराती में कहेंगे, कि वन डे some astrologer came to that sheikh and he told him that after 7 generations, in your 8th generation there will be poverty. गुजराती में कहिए ना कि 8वीं जनरेशन में खावाना फाफा बढ़से। So the sheikh was worried. What to do now? 8वीं जनरेशन जो इस प्रकार से होने वाली है, गरीब होगी तो मुश्किल हो जाएगी, कैसे करेंगे फिर? और वो इतना चिंताग्रस्त हो गया